देखिए, हम एक चीज़ ही बोलना चाहते हैं कि ममता दीदी को अगर कोई लोग सोचते हैं कि ऐसे उन लोगों को डराया जा सकता है, ममता दीदी ऐसी नहीं डरती। तो व्हेन इट कम्स टू दीदी सिक्योरिटी, वी जस्ट वांट टू से दिस कि ऐसा जो राजनीति वो लोग करना चाहते हैं, वी डोंट सपोर्ट दीज राजनीति। दिस इज बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स। बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स बंगाल के राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। ये बीजेपी के सरकार आने के बाद हम लोग ये सब चीज़ देख पा रहे हैं, और ये सब चीज़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है फॉर्मर सीएम ममता बनर्जी के जो हाउस है उसके बाहर। अब देखिए, यहाँ पर सामने एक ऑफिस है। तो ये ऑफिस में हमेशा ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल का सीएम था तब उनका जो गार्ड हुआ ये यहाँ पर रहता था। तो कल जब बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा था पश्चिम बंगाल में, हॉकर्स को हटाने का काम चल रहा था, उसके विरुद्ध ममता बनर्जी ने एक प्रोटेस्ट रैली किया। वो प्रोटेस्ट रैली खत्म हुआ करीब 5 और 6 बजे तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रात में ममता बनर्जी का जो गार्ड था उनको पूरा पश्चिम बंगाल का जो सरकार है उनके तरफ से हटा दिया गया। अभी क्वेश्चन है, ये जो गार्ड है ये ममता बनर्जी के साथ 20 सालों से है। मतलब ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल का सीएम नहीं था, ओपोनेंट लीडर था, तब से ये लोग गार्ड है ममता बनर्जी का। तो क्यों अचानक से क्या हुआ ऐसा जो ये जो गार्ड है ममता बनर्जी का ये हटा दिया गया? तो चलिए हम बात करते हैं जो सपोर्टर्स है ममता बनर्जी का, जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों से, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है। क्योंकि उनका ये मानना है कि गार्ड नहीं चाहिए, पश्चिम बंगाल सरकार से कोई गार्ड नहीं चाहिए। हम लोग जब तक है ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी के पास है। बट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर सीएम को गार्ड मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो चलिए सपोर्टर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। আমরা ইতিমধ্যে লাইভ, ঘড়ির কাঁটায় রাত 12টা 33 এবং আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির একদম সামনে। এবং এই যে লাইভটা করা হচ্ছে এটা মূলত একটা জিনিস জানানোর জন্য করা হচ্ছে, এবং একটা জিজ্ঞাস্যকে কেন্দ্র করে তার পরবর্তীতেই করা হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পাশে থাকা সিকিউরিটি যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএম হননি তার আগে থেকে তার পূর্ণ যাত্রার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, হঠাৎ করেই আজ 7টার পরবর্তীতে কোনো প্রায়র নোটিশ ছাড়াই তাদের সকলকে উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে। এবং যেই ঘরের দৃশ্য, সেই ঘরে আশেপাশে কোনো সিকিউরিটি নেই। আমাদের প্রশ্নটা সকলের একটা জায়গাতেই এসে দাঁড়াচ্ছে যে এইটা কোনো জায়গায় সংবিধান মান্যতা পেয়ে তার পরবর্তীতে কি করা হয়েছে, এবং শুধুমাত্র তাই কেন, তার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় যেগুলো রয়েছে সেইগুলো হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মাঠে নেমেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে এত সংখ্যক জনস্রোত যখন মাঠে নেমেছে, ওনার এক ডাকে 41% যেই ভোট আমরা পেয়েছি, সেই প্রত্যেকটা ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে উঠে আসা জয় বাংলা মনে হচ্ছে যেন শাসকে বসে থাকা কোনো ব্যক্তিদেরকে ভয়ের কারণ হিসাবে তার পরবর্তীতেই গোটা দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে আসছে। আমরা সকলে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি রাত 12:30টার সময়, আমরা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হিসাবেই আমরা পরিচয় পেশ করে তার পরবর্তীতে এখানে এসেছি। আমাদের মূল বক্তব্য একটা জায়গাতেই, যে এইভাবে দমিয়ে দেওয়া কি সম্ভব? আমরা যখন এখানে দাঁড়িয়ে এই লাইভটা করছি, আমাদের সকলের কণ্ঠস্বরে আমাদের সকলের বক্তব্য রয়েছে। ময়নাদি, আমরা এই যে দৃশ্য দেখছি এটার পরবর্তীতে আমরা তোমার কি বক্তব্য? এটা তো একটা তৃণমূল কর্মী হিসেবে কেন, সাধারণ মানুষ হিসেবেও এই জিনিসটা একটা অকল্পনীয় একটা বিষয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম দিন বোধহয় কেউ আমরা দেখিনি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে 3বারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তার বাড়ির থেকে সিকিউরিটি গার্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা আমি পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে একটা প্রশ্ন ছুড়লাম। আমরা সবাই মিলে একত্রভাবে এই ভিডিওটা করার একমাত্র কারণ হচ্ছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এটাকেই কি রাজনীতি বলা হয়? এটাকেই কি সঠিক রাজনীতি বলা হয়? আপনাদের কি মতামত প্লিজ একটু জানাবেন। বাদবাকি সবাই আছে, তারাও বলবে। আমরা যারা প্রত্যেকে বিরোধী রাজনীতি করছি, যারা প্রত্যেকে এই যে
যারা নোংরা বিলো দ্য বেল্ট রাজনীতি করার চেষ্টা করছে আমাদের সাথে, যারা কণ্ঠ দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আমাদের, আমরা তাদেরকে একটা কথা বলতে পারি যে এইভাবে আমাদের কারোর কণ্ঠ দাবিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যেইভাবে তারা চক্রান্ত করে তার পরবর্তীতে মনে করছে যে আমরা সকলে ভয় পাবো, এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের না কর্মীরা ভয় পায় না নেতৃত্বরা। আমরা বারবার একটা কথা বলতে চাই যে যেইভাবে নোংরা চক্রান্ত করে, যেইভাবে আজকে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপথে নেমেছেন, তার সাথে যেই জনস্রোত সেখানে নেমেছে, সেই জনস্রোত দেখার পরবর্তীতে যেই নোংরা চক্রান্ত করা হয়েছে, যে সিকিউরিটিরা গত 20 বছরের থেকেও আরো বেশি পথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে পালন করে এসছে, আজকে যখন তাদেরকে কেন্দ্র করে হঠাৎ করেই তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমন একটা সময় গোটা দৃশ্য পেশ করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সন্ধ্যে 7টা-8টার তার পরবর্তীতে। আমরা সকলে জানতে চাই যে প্রায়র নোটিশের আগে, প্রায়র নোটিশ না জানিয়ে হঠাৎ করে এই গোটা দৃশ্য কেন করা হয়েছে। আর বারবার আমরা তৃণমূল কর্মী হিসাবে একটা জিনিস বলতে চাই যে এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো কর্মীকে ভয় দেখানো সম্ভব নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা কর্মী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সকলের পাশে আছে। আমরা সকলে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে, আর হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন পড়ে পিএসও হিসাবে, যদি প্রয়োজন পড়ে এই গেটের সামনে আমরা রোজ এইভাবেই, সেটা রাত হোক বা দিন, আমরা সকলেই দাঁড়িয়ে থাকবো, সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো। আমরা বারবার একটা বার্তা দিতে চাই যে এইভাবে কারোর কণ্ঠস্বর দাবিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের কণ্ঠস্বরে জয় বাংলা যেইভাবে উঠে এসেছিল, আমাদের কণ্ঠস্বরে জয় বাংলা আগামী দিনেও উঠে আসবে। তাই এইভাবে ভয় দেখানো সম্ভব নয়। আমরা সকলে মিলে চলুন জয় বাংলা বলে, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। জয় বাংলা, জয় বাংলা, বাংলা, জয় বাংলা। আপনারা তো শুনছেন, আমরা তাদের সকলকে একটা কথা বলছি যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা কর্মী এইভাবেই রাত হোক বা দিন এইভাবেই এই বাড়ির সামনে থাকবে। যদি আগামী দিনে পিওসো বা যাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরকে আবার সেখানে আমরা না পাই, বা সেই যোগ্য জায়গা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিকিউরিটির জন্য যদি সেখানে উপস্থিত না হয়, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা কর্মীরা এখানে দিন রাত ডিউটি দেবে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা কর্মীর বক্তব্য এটা। তাই এইভাবে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করবেন না। আর যে মিডিয়া চ্যানেলরা রয়েছে যারা এই বিষয়ে তুলে ধরছে না, কিন্তু যারা এই বিষয়ে যখন আমরা প্রশ্ন তুলছি যে একটার পর একটা ঘটনা ঘটলেও সেই জিনিসগুলো দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমরা তাদেরকে করজোরে অনুরোধ করব এইভাবে যে এই ব্ল্যাক ডে অফ ডেমোক্রেসি, এই জিনিসটা বলার অত্যন্ত আরেকটা কারণ হচ্ছে এখানে যে এইভাবে সিকিউরিটি হাটিয়ে নেওয়া যায় না। আর এইভাবে যদি মনে করেন যে কাউকে ভয় দেখাবেন, আমরা বলে দিই যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা কর্মী ভয়কে জয় করে তার পরবর্তীতে এই পথে নেমেছে। প্রত্যেকটা কর্মী ভয়কে জয় করে পথে নেমেছে। देखिए, हम एक चीज़ ही बोलना चाहते हैं कि ममता दीदी को अगर कोई लोग सोचते हैं कि ऐसे उन लोगों को डराया जा सकता है, ममता दीदी ऐसी नहीं डरती। और हम जो ममता दीदी के कर्मी लोग हैं, हम ये बात बोलना चाहते हैं कि हम लोग अगर कोई प्रयोजन पड़ेगा तो हम लोग यहाँ चटाई जो है ना, बंगला में एक चीज़ बोलते हैं कि चटाई पात के उसके बाद यहाँ रुक जाएंगे और हम पीएसओ बन के उसके बाद दीदी का सुरक्षा करेंगे। अगर ये ज़रूरत पड़ेगा तो हम ये सब भी करने के लिए राजी हैं। अभी कोई बातचीत हुई? दीदी से बातचीत हुई थी, कल बातचीत हुई थी। तो दीदी कल बोले थे कि इतने लोग को रहना अभी ज़रूरत नहीं है। दीदी वॉज मच मोर कंसर्न अबाउट आवर सिक्योरिटी, बट being a supporter of Trinamool Congress, we are always concerned about Didi's security. So when it comes to Didi's security, we just want to say this कि ऐसा जो राजनीति वो लोग करना चाहते हैं, वी डोंट सपोर्ट दीज राजनीति। दिस इज बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स। बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स बंगाल के राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। ये बीजेपी के सरकार आने के बाद हम लोग ये सब चीज़ देख पा रहे हैं और ये सब चीज़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर हम सभी जब जो कर्मियां हैं
तो सभी लोगों को अगर यहाँ दिन रात रहना पड़ेगा, हम दिन दिन रात ड्यूटी करने के लिए राजी है। हम लोग एक बात ही पूछना चाह रहे हैं, आज का दिन में जो मीडिया चैनल्स है वो मीडिया चैनल्स हम देख रहे हैं कि कोई फेक नैरेटिव उठा के उसके बाद उसका एक मुद्दा बना के वो सब चला रहे हैं। तो हम लोग ये बात पूछना चाह रहे हैं वो सब मीडिया लोगों को कि सच बात अगर आप उठा नहीं सकते, वो सच बात, वो सच मुद्दा अगर आप लोगों के पास भेज नहीं सकते, तो मीडिया चैनल बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम यही बात बोल रहे हैं, ये बात हम लोगों को बोलने के लिए लाइव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये बात बोलने के लिए आप लोगों के जैसे पोर्टल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हम बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं, एक बेसिक तीन बार की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, 3 बार की मुख्यमंत्री के घर में कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा, ये कैसे हो सकता है? हम यही बात बार बार पूछ रहे हैं। मतलब बीजेपी सरकार से ये उम्मीद था आप लोगों का? क्या लगता है उम्मीद कि नहीं। कोई क्या षड्यंत्र है? ऑफ कोर्स षड्यंत्र है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसके अंदर ही कोई उत्तर हम लोगों को मिल जा रहा है, तो हम वही बात बोलना चाह रहे हैं कि ये षड्यंत्र ही है। और ये बीजेपी सरकार से एक्सपेक्ट करने की बात आप पूछ रहे थे, बीजेपी सरकार से हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर जो बेसिक चीज़ है ना, एक बेसिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सब लोगों को मिलना चाहिए, जहाँ एज अ एक सीएम ये तो रहना चाहिए। ये तो बेसिक चीज है, ये तो हक है। आज जो विरोधी राजनीति कर रहे हैं, मतलब हम जैसे लोग जो, हम तो बार बार यही चीज बोलेंगे ना कि हम जो विरोधी राजनीति कर रहे हैं उन लोगों के कंठ में ये तो उठ के आएगा। हम लोगों का जो डेटा है वो तो उठा के सामने लाएंगे। और अगर सुपीरियर में बैठे लोग जो वो नहीं चाहते कि हम ये डेटा उठा के लेके आए, इसीलिए वो ये सब चक्रांत कर रहे हैं। हम देख पा रहे थे कि हम लोगों के अंदर एक कॉपी था, जिस कॉपी में हम सभी लोगों का डेटा रहता था, वो कॉपी भी अभी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। मतलब ये टिपिकली प्लान्ड था कि यहाँ अंदर जो चल रहा है, जो लोग आ रहे हैं, उन सभी का डेटा हम लोगों को चाहिए। किसी लीडर ने शायद बोला था, उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी है, जो उनके कर्मचारी है, वो काम करने के लिए सेम चीज़ किए हैं। पर हम बोलना चाहते हैं कि सभी कर्मी लोग जो है वो दीदी के पास ही है और दीदी के पास ही रहेंगे। सुरक्षा कर्मी को भेजा गया था लेकिन फिर से उन्हें वापस लौटा दिया गया, ये भी एक सवाल उठ रहा है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि 20 साल से जो सुरक्षा कर्मी दीदी के साथ रहते थे, अचानक से वो कर्मी लोगों को क्यों उठा लिया गया? ये प्रश्न जब हम लोग कर रहे हैं, ये क्यों कोई गलत प्रश्न है क्या? लेकिन बीजेपी के कई सारे लीडर्स कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ है, क्योंकि इतने दिनों तक किसी भी पीएसओ को नहीं रखा जाता। 20 साल तो रह गए, 20 साल में कोई प्रोटोकॉल तो नहीं पेश किया गया उन लोगों के तरफ से। वो लोग तो सेंट्रल में थे। हम लोग ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर 20 साल से एक चीज हो सकता है, अचानक से आप लोगों को ये मालूम पड़ा, दीदी ने 3 बजे एक रैली किया था। हाँ। 3 घंटे के नोटिस का, 3 घंटे के नोटिस में वहाँ इतना ज्यादा भीड़ हो गया, वो देख के शायद ऊपर महल में जो बैठे हैं वो डर गए। तो उसके बाद डरने के बाद वो सोचे कि अभी ये पीएसओ को अगर हटा देंगे तो दीदी थोड़ा डर जाएगी, वहाँ उनके जो कर्मी लोग हैं वो थोड़ा डर जाएंगे। तो ऐसा एक डर का माहौल क्रिएट करने का उन लोगों का एक चाहिदा था, बट हम लोगों ने वो वैसा नहीं होने दिया और वैसा नहीं होने दिया। देखिए, अगर नए पीएसओ को भी दिया जा रहा था तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या कुछ दिक्कत? देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो नया पीएसओ दे रहे हैं वो कितना ट्रस्टवर्दी है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि 20 साल से जो लोग यहाँ रहे हैं, वो लोग दीदी के सीएम बनने से पहले यहाँ रहे हैं, तो दे हैव सीन द होल जर्नी ऑफ ममता बनर्जी। टुडे अचानक से हम देख रहे हैं कि सुपीरियर में जो बैठे हैं उन लोगों के आदेश अनुसार अचानक से बार बार हम बोल रहे हैं, कोई प्रायर नोटिस के बगैर उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। हम 7 बजे तक हम लोगों को नहीं मालूम था कि वो जो कुसुमदा है और जो लोग हैं, वो तीनों जो सिक्योरिटीज़ हैं, मेन पीएसओज है, वो 7 बजे के बाद और नहीं रहेंगे दीदी के पास। ये हम लोगों को पता ही नहीं था। हम लोगों को अचानक से पता चला, वो भी रात के एक लाइव देखने के बाद, कि यहाँ दीदी के घर में कोई भी नहीं है, कोई बेसिक सिक्योरिटीज़ नहीं है, मीडिया चैनल वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात सोचिए, ये तो कल हो ही सकता है कि यहाँ कोई गेट में अगर कोई इर्रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति यहाँ खड़े होकर किसी गलत लोगों को अंदर घुसा दे, दीदी का सिक्योरिटी वहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर ये प्रश्न हम करें एक बेसिक कर्मी के खातिर, ये क्या सही है या गलत है? आप बस ये बात बोल दीजिए। हाँ।